Hello children, how are you all? Children, I hope you all are fit and fine, watching the videos, completing your work. Children, watch the videos regularly and complete your work. So children, computer work will be completed in the book itself. आपके पास कंप्यूटर की एक नोटबुक नहीं है, आपने कंप्यूटर की नोटबुक नहीं बनानी है, इसलिए आप जितना भी कंप्यूटर का काम है वो आप अपने बुक में ही करेंगे. तो चिल्ड्रन, read the chapters, learn spellings, then only you will be able to answer properly. So children, it is very important to learn the spellings. So children, with this we start our today's video. So children, once again I welcome you all to computer class 1. Children, in our previous video we were doing chapter 5, that is turning on or off a computer. So children, till now we have learned how to switch off a computer as well as how to switch on a computer. So children, in the previous video we were doing how to switch off a computer. Let us revise and move further into the chapter. So here children, same as there are steps for turning on a computer, here also we have steps to turn off a computer. So children, in the previous video I had told you children, here we will start from the desktop. As your computer is open, you have completed your work and now you want to switch off your computer. So in order to switch off the computer, the first step to be followed is children, you will click on start button. As you can see, there is a start button on the left bottom of your स्क्रीन और द मॉनिटर. एकदम नीचे आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक बटन है जिसके ऊपर विंडो फ्लैग बना होगा, विंडो का फ्लैग बना होगा. देयर इज़ अ विंडो लाइक शेप जिसे हम विंडो कहते हैं. विंडो का आइकन है जो सिंबल है. तो यहाँ पे एज वी आर हैविंग विंडोज़ इन आवर कंप्यूटर, वी हैव विंडो शेप फ्लैग on the start button. There is a gold button, round button at the bottom of your screen children, और लेफ्ट कॉर्नर पे आपके स्क्रीन पे नीचे टास्क बार के ऊपर एक गोल सा बटन है जिसके ऊपर एक विंडो का फ्लैग बना हुआ है, जिसे जो कि विंडो का आपका जो आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में उसको सिंबलाइज करता है. तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको मेनू खुलेगा. मेनू में एक साइड में यू विल हैव shut down. You will click on shut down. जैसे ही you will click on shut down children, your screen will get switch off. आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा या आपका जो डेस्कटॉप विंडो था वो बंद हो जाएगा. जब डेस्कटॉप विंडो बंद हो जाता है तो आपका CPU भी बंद हो जाता है. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्विच ऑफ द मॉनिटर. एज वी नो चिल्ड्रन, there is a switch for switching off the monitor also. On monitor also we have on off button. So you will switch off the computer monitor. Then children, you will come to UPS. UPS is maybe switch on off का button होता है, तो you will switch off the UPS button and then you will switch off the computer from the main electric point या electric board से आप उसे बंद करेंगे. So children, here till now we have studied how to switch on a computer and how to switch off a computer. So children, in order to switch off a computer, we follow step by step procedure, and there we follow 7 steps. First step children, let us recall. So in order to turn on the computer, if you want to do something using a computer, firstly you will switch on the computer from the main electric board. जहाँ पे आप प्लग इन करते हो कंप्यूटर को, पहले प्लग इन तो किया ही होता है, हमने ऑफ किया होता है स्विच से, तो हम वहाँ से स्विच को ऑन करेंगे एंड देन we will switch on the computer from the UPS. Then you will switch on the UPS. UPS means uninterrupted power supply. UPS का मतलब होता है uninterrupted power supply. अब यहाँ पे in case the electricity goes off या लाइट चली जाती है, तो आपको जो UPS है आपके कंप्यूटर को it will not allow your computer to get switched off. It will make your computer run. So at the time when there is no electricity, UPS supplies the electricity and the computer continues to do the work. So यहाँ पे children, without interruption your work goes on. So children, after switching on the UPS, you will go to the CPU. You will switch on the CPU. After that you will switch on the monitor and then जैसे ही आप monitor को on करोगे, you will have a window in front of you children. That window is called welcome window. हम उसे welcome window कहते हैं. वहाँ पे they will ask for the password. You will type the password. After typing the password children,
देयर इज़ अ स्मॉल सर्कल जिसमें एरो बना होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, गो एरो जिसे हम कहते हैं, यू विल गेट अनदर स्क्रीन दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप स्क्रीन. दिस इज़ द स्क्रीन फ्रॉम वेयर यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू. नाउ द कंप्यूटर इज़ रेडी टू परफॉर्म एनी टास्क. अब यहाँ से आपका कंप्यूटर रेडी है काम करने के लिए. सो वॉट एवर you want to do, you want to draw, you want to paint, you want to play game, you want to write a text or type text. तो जो भी आप करना चाहते हो you can do using the computer. And now you want to switch off the computer. अब स्विच ऑफ करने के लिए एज आई टोल्ड यू विल स्टार्ट फ्रॉम द विंडोज़. आप विंडो से शुरू करोगे. विंडो में सबको पता है स्टार्ट बटन कहाँ है, आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एकदम नीचे की तरफ बॉटम में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में गोल सा बटन होता है जिसपे विंडो का फ्लैग बना होता है. अब उस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें मेनू खुलेगा. मेनू में हमें नीचे साइड में एक तरफ शट डाउन दिया होता है. तो यू विल क्लिक शट डाउन, योर विंडो विल बी गेट स्टॉप्ड, मतलब स्विच ऑफ. वहाँ पे आपका विंडो स्विच ऑफ हो जाएगा. स्विच ऑफ होने के बाद यू विल स्विच ऑफ द मॉनिटर भी बंद करना ज़रूरी है. एंड देन यू विल स्विच ऑफ द UPS and then you will switch off the computer from the main electric power. So these are the steps which we have studied in our previous video also. And children, it is given in your book also. You should read the chapter. It is very important to read the chapter and learn the spellings and try to understand the meaning of the spelling which you have come across in the chapter. Whichever word you are not familiar with, जिस भी word से आप familiar नहीं हो, आपको meaning नहीं पता है, उन सारे words के meaning भी आपको समझना चाहिए. सिर्फ हमें पढ़ के भी नहीं छोड़ना, blindly हमें reading भी नहीं करनी है. We will read with the understanding. हम पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे और तभी चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा है. So I hope you all read the chapter. You should read the chapter, children. Develop habit of reading the chapter. Chapter read करने से जो चीज़ें क्लास में छूट भी गई होती है वो भी हम रिकॉल कर पाते हैं, और जितना ही हम पढ़ते हैं उतना ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. So it is very important to read the chapter. So here, children, with this we have understood whatever is given in the chapter, and I hope now if you are given a computer you can easily switch on the computer and switch it off and do whatever you want to do. So children, normally हमें पता होता है करना क्या है, हम गेम खेल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें ऑन ऑफ करना नहीं पता, क्योंकि बाकी अप्लायंसेस की तरह कंप्यूटर इज़ नॉट सो सिंपल टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ. वी शुड ऑलवेज फॉलो स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर. अदरवाइज चिल्ड्रन वी मे फेस प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली. अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी हैंग कर जाएगा. तो इफ़ यू वांट योर कंप्यूटर टू work continuously for long time or for several years, you should handle it carefully. Or so whenever you will switch off or switch on a computer, you will follow the following steps which we have studied in the chapter. Now children, here once again we'll go through the chapter and write the difficult words through which we have come across in the chapter. So children, first thing which we came across is that electricity. So difficult terms. Difficult, CULT, difficult words, WORDS words. So first word is electricity, ELECTRI, electricity. Second one is so children, next is procedure. Electricity का मतलब सबको पता है, power, and which is used to run many of the appliances in our house. हमारे घर में लाइट ट्यूनिंग करनी हो, फैन चलाना हो, और बहुत सारे ऐसे और भी appliances को चलाना है, तो जितने भी मैन मेड appliances है तो we use electricity there. So here electricity मतलब power which is needed to run any of the appliances. Then we have procedure, PROCEDURE, procedure. So children, what do you mean by procedure? Procedure का मतलब होता है method. प्रोसीजर का मतलब होता है मेथड, तरीका. हमें कंप्यूटर कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, ये प्रोसीजर हुआ या मेथड हुआ, और उसके लिए हमने यहाँ पे वर्ड प्रोसीजर का यूज़ किया. सो चिल्ड्रन, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, हाउ यू आर डूइंग द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग और कंप्लीटिंग समथिंग इज कॉल्ड प्रोसीजर. मेथड, किसी भी काम करने के लिए एक प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं या एक मेथड फॉलो करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड प्रोसीजर. प्रोसीजर का मतलब मेथड होता है. सो द स्पेलिंग इज PROCEDURE, प्रोसीजर. एंड इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY. पहले इलेक्ट्री याद कर लेंगे, ELEC
लाइक ट्री, TRI, एंड CITY, सिटी, इजी है, दोनों को फिर मिला के लिख लेंगे। प्रोसीजर, PRO, PROCEDURE, प्रोसीजर। तो ये हो गया प्रोसीजर। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इज चिल्ड्रन स्विच। स्विच, थर्ड वर्ड है स्विच, SWITCH, switch. Switch is the point from where we switch on any electric appliances from the electric board. तो ये वो स्विच होता है जहाँ से हम ऑन या ऑफ करते हैं। स्विच को यूज़ करके या पॉइंट को यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करते हैं। तो इट इज़ जहाँ पे भी एक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, जहाँ पे हम प्लग इन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, और उसके बगल में स्विच होता है। तो प्लग इन करने के बाद इफ़ यू वांट टू स्विच इट ऑन, यू कीप इट ऑन, और इफ़ यू वांट टू स्विच इट ऑफ, आप उसे ऑफ रखते हैं। तो स्विच का मतलब होता है द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्विच ऑन योर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है देन वी हैव अनइंटरप्टेड। इंटरप्टेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट के या बिना रुके। इन, यहाँ पे UN, इन, TERRUPTED, uninterrupted. Then we have power. Fourth word is power, POWER, power. 5 we have power supply, SUPPLY, supply. Then we have 6 में हमारे पास है switch, SWITCH, switch. Then we have children password. 7 में we will write pass, PAA, pass, WORD, word, password. This is password. After password we have window, WINDOW, window. 9 window के बाद we have funnel, FINAL, funnel. Then we have 10 desktop, TOP, top, desktop. 11 पे we have, after desktop we have screen, SCREEN, screen. Then children we have appear, APPEAR, appear. And then we have shut. 13 पे we have shut, SHUT, shut. So children, let us start. First children, electricity. Electricity means ELECTRICITY. Electricity means power, current, because of which we are able to run all the electric appliances. तो ये एक तरह का फ्यूल है या एनर्जी है जो हम इन appliances को प्रोवाइड करते हैं so that these run. तो कंप्यूटर runs on electricity. जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तभी कंप्यूटर चलता है. Then children we have प्रोसीजर यानी मेथड, जिसे हम हिंदी में तरीका कहते हैं. तो हियर फॉर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर एंड ऑफ द कंप्यूटर वी फॉलोड सर्टेन प्रोसीजर्स. दीज प्रोसीजर्स आर कॉल्ड मेथड. इसे हम मेथड कहते हैं. सो चिल्ड्रन, मेथड और प्रोसीजर, PROCEDURE, प्रोसीजर. उसके बाद हमारे पास है अनइंटरप्टेड, UNINTERRUPTED, अनइंटरप्टेड. इसे हम कहेंगे, इसका मतलब है बिना रुके. अनइंटरप्टेड मीन्स बिना रुके. एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, UPS is a part of computer which is used in order to
सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट द टाइम व्हेन देयर इज़ नो पावर सप्लाई। जब पावर सप्लाई नहीं है तो हम यूपीएस के थ्रू कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और ताकि हमारा काम ना रुके, हमारा काम लगातार चलते रहे वेदर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अगर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है उससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैव अनदर ऑप्शन, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम यूपीएस के थ्रू वी कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्यूटर। इन दिस वे वी आर वर्क कीप्स ऑन गोइंग, हमें किसी भी वजह से अपने काम को रोकना नहीं पड़ता। सो अनइंटरप्टेड, बिना रुके। देन पावर, POWER, पावर, POWER, पावर। दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चिल्ड्रन। द सेम इलेक्ट्रिसिटी को हम पावर कह सकते हैं, पावर को इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ये दोनों एनर्जी है जिसको प्रोवाइड करके हम किसी भी अप्लायंस को रन कराते हैं। सप्लाई, टू गिव, टू गिव, यहाँ पे देना, किसी को प्रोवाइड करना इज कॉल्ड सप्लाई। देन क्या सप्लाई कर रहे हैं? वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, वी आर सप्लाइंग पावर टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस so that they can run and do their work. Then switch, switch का मतलब होता है a point from where we can switch on anything or off. स्विच का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ से हम किसी भी चीज़ को बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। टॉक अबाउट एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वहाँ सबके साथ एक स्विच होता है जहाँ से हम उसे ऑन भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत है तो ऑफ भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्विच, उसे हम स्विच कहते हैं। देन पासवर्ड, so children there is some words or codes given to any such type of appliances which has to be operated by the individual person or a particular person। means ये कुछ चीज़ें होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की चीज़ें होती है, उसे वही यूज़ करता है। तो वहाँ पे जब हमें उसमें उसे सिक्योर करके रखना है, उसे किसी और के हाथ में नहीं लगने देना है, तो वहाँ पे हम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि जब भी कोई और छुए तो इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड और कोई और उस चीज़ को ना छू सके। तो हमारी कुछ चीज़ें पर्सनल होती है जिसमें हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एंड दैट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन एल्स, so we give password. So computer is something which is used for doing personal work, which is used for keeping personal documents or personal secrets हम अपने उसमें रखते हैं, and we don't want anyone else to use those or access with that. तो यहाँ पे कोई और ना छुए, कोई और हमारी इन्फॉर्मेशन को ना ले सके, इसलिए भी गिव पासवर्ड, और वो पासवर्ड सिर्फ हमें ही पता होता है, कोई और उसे नहीं जानता, इसलिए वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को नहीं छू सकता है जब तक कि हम ना चाहें या जब तक कि उसे पासवर्ड ना पता हो। तो जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर वांट्स टू नो कि वेदर द पर्सन हु इज़ यूजिंग इट इज़ अ राइट पर्सन और नॉट, और फिर उसके बाद ही वो अलाउ करता है टू एक्सेस और टू यूज़ द कंप्यूटर। तो यहाँ पासवर्ड, दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सिम्बल्स और नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हम ये जो पासवर्ड देते हैं लेटर्स के फॉर्म में दे सकते हैं, 6 लेटर वर्ड्स देते हैं जनरली, और नंबर्स के फॉर्म में दे सकते हैं, सिम्बल्स भी दे सकते हैं, और कोई भी अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देन विंडो चिल्ड्रन, यहाँ पे विंडो, खिड़की वाली विंडो की हम बात नहीं करें, यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर विंडो। कंप्यूटर विंडो मीन्स चिल्ड्रन द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और द स्क्रीन विच वी गेट when we start the computer is a window, या फिर the screen which we get when we do the work on computer. So अगर window हमें जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं हमें एक स्क्रीन दिखाई देती है, that appears in front of us, that is called window। और यही इसमें once you give the password we get another window, that is called desktop window। तो यहाँ पे पहला विंडो वेलकम विंडो कहलाता है, और ये विंडो पार्ट ऑफ द स्क्रीन विच इज़ डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ अस। अगर फर्स्ट जब खुलता है तो दैट इज़ वेलकम विंडो, और सेकंड यानी कि द फर्स्ट वन विच इज़ टू डू द वर्क इज़ डेस्कटॉप। तो सबसे पहला जो स्क्रीन खुलता है हम वेलकम विंडो कहते हैं, लेकिन जब उससे के अलावा जो सबसे पहला जिसमें हम काम कर सकते हैं उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। सो यह डेस्कटॉप हो गया। फाइनल का मतलब होता है कि सारे काम होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल। और आखिरी जो होता है और सबसे मेन जो होता है दैट इज़ फाइनल। तो यहाँ पे भी फाइनल किसी भी चीज़ का फाइनल हमारा मेन होता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं उसका भी आखिरी रिजल्ट को हम फाइनल कहते हैं, या कुछ काम करते हैं तो आखिरी चीज़ जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड फाइनल। Desktop is the part of computer which is displayed, it is the first screen which is displayed in front of us in order to do any work. Then screen, screen का मतलब होता है
कि वो कंप्यूटर का पार्ट जहाँ पे हमें सब कुछ दिखाई देता है, जिस पे हम जो भी कर रहे होते हैं वो दिखता है, उसे हम स्क्रीन कहते हैं। हम इसे वो कंप्यूटर का स्क्रीन भी हो सकता है, मॉनिटर का भी स्क्रीन हो सकता है। देन ट्वेल्थ में हमारे पास है देन अपीयर मतलब दिखना। तो चिल्ड्रन, अपीयर मतलब दिखना। द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस इज वेलकम विंडो। तो सबसे पहला स्क्रीन जो हमको दिखता है हमारे स्क्रीन पे, दैट इज वेलकम विंडो। तो दिस इज अपीयर। देन शट, SHUT, शट यानी क्लोज, बंद करना। हमने ओपन सीखा, ओपन मीन्स टू स्टार्ट और शट का मतलब टू क्लोज। सो लेट अस read the spelling, learn the spelling, ELECTRICITY, 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 electricity. Procedure, PROCEDURE, procedure. Uninterrupted, UNINTERRUPTED, uninterrupted. Now we can split this word. UN हो गया, इंटरप्ट, इंटर लिख सकते हैं, INTER, इंटर लिख सकते हैं। देन रप्टेड, RUPTED, अनइंटरप्टेड। तो हम इसे 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहला UN, इंटर, INTER, इंटर, रप्टेड, दूसरा RUPTED, अनइंटरप्टेड। पावर, POWER, पावर। SUPPLY, 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 supply. SWITCH, 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 switch. फिर है पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड। फिर है WINDOW, विंडो, WINDOW, विंडो। FINAL, फाइनल। DESK, TOP, टॉप, डेस्क प्लस टॉप, डेस्कटॉप। स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन। अपीयर, APPEAR, अपीयर, APPEAR, अपीयर। SHUT, शट, SHUT, शट। ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स विच यू आर गोइंग टू लर्न एंड राइट। लर्न करके लिखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। सो चिल्ड्रन, लर्न कर लो बोल बोल के, उसके बाद आप उसे लिख करके याद कर लो। तो इन दिस वे चिल्ड्रन, दीज वर सम ऑफ द वर्ड्स विच वी कम अक्रॉस इन द चैप्टर. I hope you all have understood and you can learn it now. You have to learn the spellings. It is very important to learn the spellings. So children, let us start with the exercise. So children, as you can see on page number 37, पेज नंबर 37 में हमारे पास है क्वेश्चन, हम सेल्फ इवैल्यूएशन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सेल्फ इवैल्यूएशन। बिफोर दैट चिल्ड्रन, देयर इज अ क्वेश्चन गिवन। एक अलार्म दिया है इंस्ट्रक्शन दिया है, अलार्मिंग इंस्ट्रक्शन दिया है आपको। नेवर स्विच ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली। सो चिल्ड्रन, एज यू नो, never switch off the computer directly. As you know, whenever we switch on a computer or switch off a computer, we should follow step by step method. तो यहाँ पे हमें वार्न किया है कि कभी भी हमें कंप्यूटर को डायरेक्टली स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। जब भी आपको स्विच ऑफ करना है चिल्ड्रन, यू विल फॉलो द स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो यहाँ पे with this we come to the end of the chapter children. Now you can see here self evaluation. Our next topic is self evaluation. तो चलो हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। Self evaluation is a part in which we are going to judge whether we have understood the following statements given here or whether these are from the chapter or not. So if we agree with the statement, we will put a tick in front of the statement. Otherwise we will put cross under the statement and we will put टिक अंडर द डिसएग्री स्टेटमेंट। अगर हम एग्री करते हैं तो एग्री वाले बॉक्स में टिक करेंगे और नहीं करते हैं तो क्रॉस करेंगे एग्री में, और डिसएग्री वाले में हम टिक करेंगे। सो हियर चिल्ड्रन, सेल्फ इवैल्यूएशन में फर्स्ट हमारा इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है। The statement is, I know that to turn on or off a computer we should
follow a step-by-step procedure. So we have very well understood from the chapter. We have very well from the chapter understood that when we switch off a computer or switch on a computer, we should follow step-by-step procedure. जब भी हम कंप्यूटर को switch on करेंगे या switch off करेंगे, हम step-by-step मेथड फॉलो करके ही करेंगे. तो पहला स्टेटमेंट, वी एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट विच वी हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड इन द चैप्टर. ये एक मेन पॉइंट था जो हमने चैप्टर में पढ़ा और समझा था. तो लेट अस राइट एंड अंडरस्टैंड. I know that your first point which we have studied under self-evaluation children in the chapter is I know that, I-K-N-O-W, know, T-H-A-T, that, I know that, to turn, T-U-R-N, turn on or off, turn on or off a computer, to turn on or off a computer, we should follow step, S-T-E-P, step by step method, M-E-H. We should follow step by step method, नहीं लिखेंगे, procedure लिखेंगे. चलो यहाँ procedure वर्ड दिया है, तो we will write procedure, P-R-O-C-D-U-R-E, procedure. So in order to switch on or off a computer, we should follow step by step procedure. So children, we should follow step by step. So children, first point is I know that to turn on or off a computer, we should follow step by step procedure. So we have studied this point in the chapter and we agree with the statement that whenever we switch on a computer, we should always follow step by step procedure. हमें हमेशा step by step procedure follow करना चाहिए. तो यहाँ पे we agree with the statement. So here you will write, put tick under agree. आप agree के नीचे tick करोगे. So this is the box under agree. So you will put tick under the agree. Second point is I know that, I-K-N-O, know, T-H-A-T, I know that we should, W-E-V-S-H-O-U-L-D, should off, we should off या turn off होगा, turn off, T-U-R-N, turn off the computer. We should turn off the computer भी लिख सकते हैं, a computer भी लिख सकते हैं, a computer, C-O-M, computer. We should, I know that we should turn off a computer properly, P-R-O-P-E-R-L-Y, properly, after finishing our work. हमारा काम खत्म होने के बाद हमें कंप्यूटर को प्रॉपरली स्विच ऑफ करना है. प्रॉपरली मीन्स हियर चिल्ड्रन after finishing the work, W-O-R-K, work. So children, what do you mean by properly? Properly का मतलब यहाँ पे क्या होता है? Properly means by following step by step method. Properly का मतलब यहाँ पे by following step by step method. So we agree with this statement also. We have studied in the chapter that whenever you switch on a computer, children, you should switch it on by following step by step method, and whenever you switch it off, that time also you should follow the proper instructions given here in the form of steps, different steps. So you should follow the step by step method for switching on the computer or off the computer. So second step, we agree with the second statement also. In this it is said that while switching off the computer, you should switch it off properly. That means you should switch off the computer by following step by step method. उसके बाद हमारे पास तीसरा है, आप तीसरे में देख सकते हैं I fully know that. Third one is I-F-U-L-L-Y, fully. I fully know, K-N-O-W, know, T-H-A-T, that.
I fully know that a computer should not, a computer, Q-T-R, should, S-H-O-U-L-D, should, N-O-T, not, a computer should not be, B-E-B, turned, T-U-R-N-E-D, turned, should not be turned off, O-F-F, off, directly, D-I-R-E-T-L-Y, directly. So children, we agree with this statement also, that a computer should not be switched off डायरेक्टली. हमें कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्टली ऑफ नहीं करना चाहिए. हमने इस चैप्टर में यही सीखा कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप मेथड. व्हेन वी स्विच इट ऑफ वी शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप मेथड. वी शुड नॉट स्विच ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली. तो इस स्टेटमेंट से भी वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो एंड वी विल पुट अ टिक अंडर द बॉक्स एग्री. So dear children, in the complete chapter we have studied that whenever we use a computer, children, whenever we want to do any work on a computer, जब भी आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आप कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से कंप्यूटर को ऑन करेंगे और उसके बाद काम खत्म होने के बाद आप उसे डायरेक्टली नहीं बंद करेंगे बल्कि यू विल स्विच इट ऑफ बाय फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. सो चिल्ड्रन, वेदर यू आर switching on the computer or switching off the computer, you will follow step by step method. और कभी भी कंप्यूटर को हमको डायरेक्टली बंद नहीं करना है क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली, एज वी नो, कंप्यूटर इज़ अ डेलिकेट मशीन. अगर हम उसे डायरेक्टली बंद करते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. सो डियर चिल्ड्रन, विद दिस we have come to the end of this video. Children, whatever we have done today, go through the video, understand whatever is explained or told in the video and learn the difficult words and try to understand their meaning. So children, it is very important to learn the spellings. जब भी हम आंसर कर रहे हैं तो हमें आंसर पता होता है, but as we do not know the spelling, we make lot of mistakes. तो spellings याद करना ज़रूरी है. Please learn the spellings and do whatever we have done in the बुक itself. हमने एक ही एक्सरसाइज किया, दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन. उसे भी आप बुक में करेंगे और आप चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद स्पेलिंग्स याद करेंगे. सो चिल्ड्रन, विद दिस आई एंड माई वीडियो हियर. वी विल मीट वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू and have a nice day ahead.